நானுமே உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரும் உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரும் இல்லை செய்யா அல்லேலூயா இல்லை செய்யா அல்லேலூயா. Good evening, அனைவருக்கும் பங்கேற்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த பாலை வழக்கத்தை தெரிவிக்க முடியும். परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, सब यहाँ आराधना करते हैं. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகிறது. ஏனென்றால் நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்கிறோம், அவருக்கு துதி செய்தால் நாம் ஒவ்வொரு बहुत ब्लेसिंग से आशीष है कि हमारे बीच में प्रभु के बहुत बड़े महान सेवक यहाँ पर उपस्थित நமக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய ஓடவர் வந்திருக்கிறார். இது கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். அது நமக்கு பாக்கியமாக उनका नाम पास्टर जॉन विल्बर. அவருடைய பேர் பாஸ்டர் ஜான் வில்பர். I know Pastor John Wilbur 1978. உட்கார்ந்திருக்காருல மணி நகர் அகமதாபாத் குஜராத். உட்கார்ந்திருக்காரு முதலாக இருக்கிறார். அதோடு நான் அவரிடம் பயிற்சி வருகிறேன். அவர் எனக்கு கற்றுத் தருவதாக ஆசிரியராகவும் இருக்கிறார், கற்றுத் தருவதாக இருக்கிறார், பயிற்சி தருவதாக இருக்கிறார். தானே பேசுறாரு, வந்திருக்காரு. அதாவது முழுமையாக அவரை மிகவும் நேசிக்கின்றது. அனுப்பிடுவார். முன்னால அங்க நம்ம ஐட்டம் இருக்காருல்ல இங்கிலீஷ் ஸ்கூல், இயேசு ஒருவரை அழைக்கிறார் என்றால் அது பன்முக வித்தியாசமான நுணுக்கங்களும் தனித்தனியான ஊழியர்களுக்கான அழைப்பாக உள்ளது. அதாவது எந்த பைபிள் கற்றுக்கொள்வதற்காக படிப்பு, அதாவது பயிற்சி கொள்ள தேவையில்லை, தேவன் கற்றுத் தருகிறார். நாங்கள் மிகவும் பாஸ்டர் ஜான் வில்பரை அதிகமாகவே நேசிக்கிறோம். மணி நகர் ஈஸ்ட் அகமதாபாத் குஜராத். மணி நகர் அதாவது என்னுடைய திருமணம் ஆவதற்கு முன்பாகவே நான் பாஸ்போர்ட் அவருடைய கைகளால் நான் ஞானஸ்நானம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருட காலமாக நான் அவரை மிகவும் ஏற்பத்தோட உறுதியிருக்கிறேன். அதாவது என்னுடைய திருமணமான உடனே முதல் குழந்தையை எப்பொழுது பிறகுமோ அவருடைய நினைவால் நான் வில்போர்ட் என்று பெயரை அதே போல் நான் என்னுடைய முதல் குழந்தை வில்போர்ட் என்ற பெயரை தான் வைத்து அழைக்கிறேன். அதாவது ஜான் வில்போர்ட் அவர்களுடைய முதல் அவருடைய மகள் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார். அவருடைய மருமகளும் இருக்கிறார்.
அவருடைய மகனாரும் someone, no, you are telling lies, Robin. Many times. வாக்கு கொடுத்தார். நான் நிச்சயமாக உங்களுடைய மகளுடைய கல்யாணத்துக்காக திருப்பதிக்காக நான் அவசியம் வாக்குறுதி கொடுத்தார். அவர் அமெரிக்கா சென்றார். அங்கே போய் நிறைய பயிற்சிகளை மேற்கொண்டார். அடுத்தது அவர் உதவி டைரக்டராக கூட அவர் ஆர்கனைசேஷன் போல यीशु का आगमन होगा तब वो दिन तय करेगा कि कितने बपतिस्मा कितने चर्च தேவனுடைய வருகை எப்பொழுது உள்ளதோ அங்கு எத்தனை பேர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ, எத்தனை பேர் தேவனுடைய ஊழியத்திற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ, அவர்கள் மூலமாக எவர்கள் அதற்காக ஆயத்தமாக இருக்கிறார்களோ அப்பொழுதுதான் தெரியும் அவருடைய ஊழியம் எப்பொழுது தேவனுக்காக உண்மையாகவே அவர் நடத்தி இருக்கிறார் என்பது. அவர் எங்கு செல்கிறாரோ அங்கெல்லாம் ஊழியத்தின் மூலமாக அநேக கூடுதல்களை அவர் சேர்க்கிறார். நான் அதிகமாக நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை. நான் போதகர் அவர்களை இன்று அழைத்திருக்கிறேன். நாங்கள் எல்லோரும் கர்த்தராக அவரை வாழ்க்கும்படியாக அவரை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் விரும்புகிறோம். என்னுடைய அன்றாட கருத்திலே இதைதான் நாங்கள் அவ்வப்போது கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய நல்ல ஒரு சுகாதாரத்திற்காகவும் அவர் இன்னும் கர்த்தருக்காக நிறைய பாதிப்புகளும் முடிவு செய்வதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய அன்றாட கருத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது ரொம்ப குறுகிய நான் அரை மணி நேரம் எடுத்துக் கொண்டாலும் அவருடைய அனுபவத்தை பற்றி அவரை பற்றி சொல்வதற்கு நிறைய வார்த்தைகள் இது தங்கிவிடும். அதனால் மிகவும் நன்றியுடன் மொழியை நான் கொடுத்துக் கொள்கிறேன். परमेश्वर के प्यारे नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग आराधना के अंदर बहुत ही उत्सुकता से आदि हुए हैं और शामिल हुए, उसे देख करके मुझे बहुत ही खुशी हुई। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सारों को शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर को आपने पहचाना, उसके बाद परमेश्वर के उनकी सत्यता को जानने के बाद उनको ग्रहण करके आप लोग इतने लोग इकट्ठे हुए परमेश्वर के नाम से, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम पे धन्यवाद देता हूँ। ने ऐसा कहा कि मैं यहाँ
पर हम लोग यहाँ पे गुजराती के गुजराती भाषा में गलीसिया और तमिल भाषा में गलीसिया बोलने वाला हूँ, ऐसा करके पुणे में रहने के समय मुझे वो खबर नहीं थी। तो परमेश्वर की कृपा से यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर तमिल चर्च, हिंदी चर्च, गुजराती चर्च और अंग्रेजी चर्च, ये सारी सेवाएं यहाँ पर सेवा चालू करने के उस बात पर जानकर मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हुई और अच्छे से चल रहा है, इसलिए जानकर मुझे बहुत ही आनंदित मैं हो रहा हूँ। ये जो फंक्शन भाई है वो बहुत ही मेरे एकदम निकटता के मित्र की तरह है और मैं कई वर्षों से उनका और उनकी जो कुकिंग है इस सप्ताह के अंदर विवाह होने वाला है और उसके लिए मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और मुझे खुशी है, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, यहाँ कई लोगों को मैं जान रहा हूँ और पहचान रहा हूँ और साथ साथ में इन समयों में आप लोगों के बीच में मैं इकट्ठा होकर के आपके साथ जो समय बिता रहा हूँ वो वाकई में मैं परमेश्वर के नाम से बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। और इस ये शाम के वक्त तक ये जो आराधना है, इसके अलावा कल सुबह वाली जो आराधना है और उसके साथ साथ जो शाम को आते में जो आराधना के लिए हम इकट्ठे होने वाले हैं, तो सारी बातों में परमेश्वर ने जो आप लोगों के साथ शामिल होने का सौभाग्य दिया, उस बात से और भी मैं आनंदित हो रहा हूँ और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो। आज का जो दिन है ये समय में बहुत सारे बातें बता करके समय गंवाने के लिए नहीं हुआ, लेकिन भजन संहिता के पुस्तक के अंदर से कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे, उसमें से संक्षिप्त में थोड़ी बातें हम आपस में बांटेंगे, जैसा मैं चाहता हूँ आप लोग। और प्रार्थना के सहित 46वां भजन संहिता मेरे साथ आप लोग पढ़ लीजिए। सॉरी 46 संख्या का भजन संहिता। भजन संहिता भजन संहिता 46वां और पहला परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला कहा है। அவரை நாம் சார்ந்து அவருக்கு பிரியமாக உலகத்தில் வாழ்க்கை நடத்த முடியும்
எங்களுக்கு அடையாளமாக இந்த சங்கீதத்தை சில முக்கியமான வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருக்கிறார். इस भजन संहिता के पहले वचन में हम देख रहे हैं तो परमेश्वर हमारे पास किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और क्यों परमेश्वर के नाम से होने के बावजूद यानी होने की वजह से हमें किसी बात का डर नहीं है, ना कोई चिंता है, ना कोई मुसीबत है, किस प्रकार से हमारे साथ वो व्यवहार करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमें देखने मिलता है। நமக்கு அடைக்கலம் வளரும் அவருக்கு अनुकूलமான துணைவாளர். यानी परमेश्वर अपने लिए शरण स्थान है, साथ साथ में हमें बल भी देते हैं और वो हमारी सहायता हमारे विपत्ति के समय में करते हैं। இங்கே நமக்கு தமிழ் பேரா வந்து அடைக்கலம் அப்படின்னு போடுது. यानी तमिल में अडेकलम यानी शरण स्थान ऐसा दिया है। ஆங்கிலத்துல அது ரெஃப்யூஜ் என்று போடுது. ரெஃப்யூஜ் बताओ यानी अंग्रेजी में ऐसा लिखा है रेफ्यूजी। அடைக்கலம் என்று சொல்றவங்க ஒரு பெரிய அரண்மனை இருக்கிறது அந்த அரண்மனை சுற்றிலும் ஒரு அடைக்கலம் கோட்டை. यानी यहाँ पर जो तमिल में अडेकलम लिखा है शरण स्थान, इसका मतलब ये होता है कि एक राजा का जो बड़ा महल होता है और महल के चारों ओर उसकी सुरक्षा के लिए जिस तरह से सेनाओं को लगाकर जिस तरह से उसकी सुरक्षा दी जाती है वैसी बात है ये जो शरण स्थान। காலத்துல அரசர்கள் நாட்டு மக்களை ஆண்டு வந்த காலத்துல ஒவ்வொரு பட்டணத்திலும் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு அரண்மனை, பிறகு அந்த ராஜாவுடைய பாதுகாப்புக்காக ஒரு கோட்டை, பிறகு குடிமக்கள் அங்கு தங்கியிருக்கிறதுக்காக வசதி. उसी तरह उस जमाने में जो लोग लड़ाई करके फतेह होते थे उसके बाद वो लोग इसी तरह से किला बनाते कि जो राजा है उनके लिए एक बड़ा महल और उसके साथ साथ उनके सेनाओं के लिए एक बड़ी जगह और साथ साथ किला ऐसा बनाया होता है तो उसके अंदर उसकी प्रजा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इस प्रकार का ஒரு சில அரண்மனை அடைக்கலமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற கோட்டை ஒரு முக்கியமான வாசல் இருக்கும், கால வாசல் இருக்கும். और वो जो राजा का महल ऐसा बनता है उसमें किसी पर सबसे बड़ा दरवाजा एक होता है या तो दो होता है या चारों ओर दरवाजा रखा जाता है। சத்துருக்கள் யாராவது வரணும் வர முடியாது. यदि कोई शत्रु आना चाहता है तो उस किले से आगे बढ़कर के वो अंदर पार नहीं हो सकता, ராஜாவுக்கு பாதுகாப்பு மக்களுக்கு பாதுகாப்பு. क्योंकि वो ऐसा महल होता है और किला भी ऐसा बना होता है कि वो राजा के लिए भी सुरक्षित है, साथ साथ उसकी प्रजा के लिए भी सुरक्षित புரட்சி சங்கீதக்காரன் சொல்கிறாரு, தேவன் நமக்கு கோட்டையும் அரணும் காவலுமாக இருக்கிறார். यही वचन संहिता के 46 में पहला वचन में इस तरह से कहा गया है कि परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है और हमारा बल है, साथ साथ में वो हमारी सहायता है। பிரச்சனை பண்ணுகிற காலத்துல அங்கு ஒரு ராஜாவுக்கு போனார். और जब एक जमाने में दानियल के पुस्तक के बारे में जब भी उसका प्रवचन देते थे तो चार राजाओं के बारे में इन लोगों का दर्शन दिया। நேபுகாத் நேச்சார் என்கிற அவருடைய பேரு பாபிலோன் என்கிறது ஒரு வார்த்தைக்கு பேரு. और नेबूकाद नेचर करके वो जो राजा का नाम है और उसके अलावा वो जो बाबिलोन को शहर का नाम था। அந்த பட்டணத்துக்கு தலைவரும் அந்த மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இருக்கிறதுக்காக அந்த ராஜா வந்து அந்த பட்டணத்துக்கு இன்னொரு சைட் கோட்டை. और उस जमाने में वो नेबूकाद नेचर जो राजा था वो उनकी प्रजा की सुरक्षा के लिए और उनके राजा की सुरक्षा के लिए उस शहर के पूरी तरह से उन्होंने दीवार बना करके वहां एक किला बड़ा सा बना करके उनकी सुरक्षित के लिए पूरी तरह से उन्होंने उन लोगों को संभाला। அவங்களுக்கு பத்திரிக்கை வகையான சின்ன சின்ன கோட்டைகள் அது அகலமான கோட்டை. और आजकल हमने आसपास में कहीं शायद देखा होगा या जाना होगा जो वो छोटे छोटे किले होते हैं या फिर छोटा सा वो उनका जो सरल स्थान होता है ऐसा नहीं, लेकिन वो बहुत ही विशाल रूप से नेबूकाद नेचर के टाइम में बहुत बड़ा वो राजा का महल था। அனுமதி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தவங்க எழுதி புத்தகங்கள் எழுதவங்க சொல்லும்போது 3 குதிரை சாரத்தில் வந்து போகத்தக்கதாக அவ்வளவு और उसका
वो जो चौड़ाई और लंबाई के बारे में वहां पर विस्तार से वो लोग उसकी जानकारी देते हैं। तो वो शास्त्री लोगों ने या फिर जिन्होंने उस जगह पर जाकर देखा तो कहते हैं कि 100 जोड़ी के जो घोड़े का जो तांगा जैसा था वो पूरी तरह से एक साथ में खड़े रह सकते, इतना विशाल उन्होंने उस महल को बनाया था। இன்றைக்கு யாராவது வந்து இந்த தாக்கணும் சொன்னா அவங்க சுத்தி வச்சு ஆணை அடிச்சு அடிச்சு உடச்சு இருந்தாலும் இதை 3 சாரம் பண்ணி போகக்கூடிய அகலத்துக்கு போட்டு उन्होंने चाहिए। यानी उनके विरोधी कोई उसके अंदर दाखिल होने के लिए चाहे वो किला ठोकर के भी वो दीवार को तोड़ करके भी आने के लिए चाहे तो किसी भी तरह से वो नाम उनकी जैसी बात होती है। அந்த கோட்டை அவ்வளவு அகலமா இருந்தது, அந்த ராஜா பத்திரமா இருக்கணும், மக்கள் பத்திரமா இருக்கணும், பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்காக அவ்வளவு அகலமான கோட்டை இருக்கு. அதுல ஒரு வந்து யாராவது கவர்மெண்ட் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி அதை சுத்திலும் ஒரு 20 அடி அகலத்துக்கு ஆழத்துக்கு ஒரு அகலி और इतना ही नहीं, वो इतना विशाल सा बनाया कि किसी भी तरह से प्रजा या वो राजा को कोई भी तरह से हानि ना पहुंचे और कोई विरोधी आकर के उनका सामना ना कर ले, उसके लिए इतना सुरक्षित बनाया। केवल इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उस दीवार के अंदर की ओर वहां पर इतना बड़ा खाई बनाया था जिससे कि कोई दुश्मन अगर सामना करने आए या उनके ऊपर किसी भी प्रकार से वो विरोध करने आए तो वो सारे के सारे उसके अंदर नष्ट हो जाए। इस प्रकार से उनकी सुरक्षा को उस तरह से उन्होंने स्थापित करके रखा। அந்த பக்கத்துக்குள்ள யாராவது மனமோ இருக்கிறதா அந்த ஆவணமான அகலியை வந்து நீச்சல் அடிச்சு சோதனைக்கு வந்து அதை தோட்டம் போட்டு உள்ள வர்றது எப்போ வர்றது। और यदि कोई दुश्मन आना भी चाहा सामना करके, लेकिन उस शहर के अंदर वो जब भी दस्तक दे और वो इतना बड़ा खाई यानी गड्ढा बनाया था और उसके अंदर पानी जहां से उसे पार भी करना है, उसके बाद उस किले का उसे किसी भी तरह से छेद करके अंदर जाना है तो मुश्किल वाली बात थी, क्योंकि वो कब तक वो उस किले के अंदर वो आएगा, तो उतने मुश्किल वाली बात थी। அவர் வந்து இந்த கோட்டை கட்டினது போறதுனால இந்த அகலை கட்டினது போறதுனால அப்படி யாராவது வந்து அந்த நீச்சல் ஆடி வந்து வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆழமான தண்ணியில திருமணம்। और वो राजा इतना पराक्रमशाली राजा था नेबूकदनेस्सर, उसने उनकी प्रजा और खुद की सुरक्षा के लिए उसने ही किला बनाया, लेकिन शहर के उस जगह पर इतनी बड़ी खाई गड्ढा बनाया था जहाँ पर पानी डाला हुआ था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जो मछली है उस मछली को भी अंदर डाला हुआ था जिससे कि वो मछली पूरे इंसान को निगल सकता है। तो उस तरह से उनकी सुरक्षा को उन्होंने पूरी तरह से उतना वो गहरा बनाया। பக்கத்துல ராஜாவையோ பக்கத்துலையோ பார்க்கணும், அவங்கள அங்கிருந்து எல்லாம் இழுத்துக்கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வரோம் வெளியே முடியாது। நாங்க எதிர்கொண்டோம் வாய்ந்தாலும் ஒழுங்கா இருக்கு, क्योंकि वो इस प्रकार से बनाया था। यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं किसी भी तरह से इस शहर के अंदर प्रवेश हो जाऊं, इस किले के अंदर भी मैं पार हो जाऊं और वहां से कुछ चुरा के या मैं जा सकता हूँ, ऐसा अगर वो सोचता भी है, उसके लिए वो नामुमकिन वाली बात है। इसलिए अगर वहां तक वो पहुंच भी जाता, किले तक पहुंचने से पहले उस इतने बड़े गहरे गड्ढे के अंदर वहां पर इतनी बड़ी मछली थी कि वो उस इंसान को पूरी तरह से निकल सकता है और वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। சாதாரணமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிறேன் அதை சங்கிலிக்காக இருக்குது நம்முடைய மன்னர்கள் உங்களுக்கு நடக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கோட்டையாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி और हम देखते हैं भले ही पराक्रमशाली जो ये नेबूकदनेस्सर राजा है, लेकिन फिर भी हमारे दृष्टि से देखते हैं तो केवल वो मनुष्य है। जब वो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए इतने कुछ प्रयास करके उन लोगों को बचाने की कोशिश किया है, जब उतना वो पराक्रमी देखा जाता है तो हमारे परमेश्वर कितने सामर्थ्य और पराक्रमी होंगे कि इस वजह से इनका 46वें अध्याय के अंदर पहले वचन में ऐसा दिया है कि वो अपने शरण में हमारा बल है और सहायक है।
அவர்களுடைய பிள்ளைகளாக நீங்களும் நானும் உலகத்தில் அவருக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து வாழ வேண்டும் அவருக்கு பலத்த கோட்டையாக இருக்கிறார். इसीलिए कि हमारे प्रभु के चाहने वाले परमेश्वर की संतानों वो आप लोगों से यही कह रहा है कि यदि हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर और उनके न्याय प्रमाण के यदि हम चलते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन पर उसी तरह से अपने सर्वस्नान बनेंगे और हमारा बल रहेंगे और विपत्ति में हमारी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। பலத்த கோட்டையும் அவர்களும் அவர்களும் பாதுகாப்புமாக இருக்கிறதுனால நாம் பயப்படவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி और उसी तरह से इस तरह से परमेश्वर पर हम पूरी तरह से निर्भर होकर के रहेंगे तो परमेश्वर हर तरह से हमारी सहायता करेगा और उसके वजह से तीसरे वचन में ही फिर से दोहराया गया है कि हर तरह से हमारी सुरक्षा को वो पूरी तरह से पक्की करते हैं। உங்களுக்கு எனக்கு மாணவர்கள் எப்படிப்பட்ட பெரிய பராக்கிரமசாலியாக இருக்கிறார் பாதுகாப்பாக இருக்கிறத பார்ப்பதற்கு வேண்டுமான ஒரு நல்ல பலம் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு கோட்டையாக परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कितने पराक्रमी और कितना ही सहायता करने वाले और हमारे लिए बल है और सहायता है उसका उदाहरण पूरी तरह से यहाँ पर दिया है। उसे हम विश्वास करते हैं ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहे। இந்த சங்கீதத்தை நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று மட்டும் இல்ல இரண்டாவது और उस वजह से जब हम पढ़ेंगे आगे तो पहला ही वचन नहीं दूसरे वचन को भी आप पढ़ के देख सकते हैं। ஒரு நதி உண்டு அது ஏகாவின் மூலமாக தேவனுடைய நகரத்தையும் அவருடைய உன்னதமான வாசம் கொள்ளும் பரிசுத்த தலத்தையும் சந்தோஷிக்கக்கூடிய ஒரு நதி. यहाँ पर चौथे वचन के अंदर हम जरा पढ़ेंगे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। நதி அப்படின்னு நமக்கு என்ன தண்ணி नदी का मतलब हमें क्या पता है कि वो जो पानी बह रहा है குளிச்சு यानी वो ठंडक दे रहा है தாகம் தீர்க்கும் और वो प्यास बुझाता है। ஆண்டவர் நமக்கு எப்படி இருக்கிறார் கோட்டையா இருக்கிறாரு। अगर परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार के हैं हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे शरण स्थान है தாகம் தீர்க்கும் நதியாக இருக்கு। और हमारे प्यास बुझाने वाली नदी भी बनते हैं। பலஸ்தீன நாட்டை எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா இங்க நம்ம இந்தியாவுல தமிழ்நாட்டுல பல இடங்களுக்கு வறட்சியா நிறைய இருக்காது। और हम वो फिलिस्तीनी जो देश है उसके बारे में हम समझेंगे तो हमारे देश के अंदर भी कई ऐसी जगह है एकदम मरुभूमि यानी जहाँ पर पानी नहीं मिलता है सूखा होता है। இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு ஆறு போகுது அது ஒரு தண்ணி இருக்குது ஒரு குளம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பகுதியில இருக்கிற மக்களுக்கு குடிக்க சாப்பிடும்। अगर समझो ऐसे मरुभूमि के अंदर यानी सूखे उस मिट्टी के अंदर या उस जगह के अंदर कहीं तालाब है या फिर थोड़ा सा एक बहाव हो रहा है पानी का तो वहां के लोगों के लिए इतनी खुशी पैदा हो जाएगी वो कम पानी तो कम पानी लेकिन उसमें से भी उन्हें जिंदा रहने के लिए एक बड़ी खुशी मिलती है। இசைக்கிய ராஜா காலத்துல இந்த பட்டணத்துக்குள்ள இந்த அரண்மனைக்குள்ள அந்த நகரத்துக்கு தண்ணி இல்லாம மக்கள் கஷ்டப்பட்டதுனால அங்க தண்ணி கொண்டாடணும்னு சொல்லி அவர் வெகு தூரத்துல இருந்து ஒரு ஆளுநருக்கு அந்த जैसे कि राजा के उनके गांव में भी उस समय में वहां पर पानी बिना लोग तरसते थे उसके लिए उन्होंने राजा ने उस दूर जगह से लेकर के किसी भी तरह से उस मिट्टी को खोद करके वहां से रास्ता बनाकर वहां से पानी अपने देश में रहने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। இந்த காலையில வசதி செய்து கொடுக்கிற நேரத்துல யாராவது சேலை வந்து சில வீட்டுல முக்கிய போட்டு எப்படியாவது பிடிச்சிருந்தோம் அவங்க உள்ள இருந்தாலும் பரவாயில்ல இருந்தா அந்த பக்கத்துக்கு பாதுகாப்புக்காக 20 வருஷம் எந்த கஷ்டம் இல்லாம சாப்பிட்டு உள்ளே இருக்கிற வரையும் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி வசதி செய்து மக்களை பாதுகாப்பு ராஜா। और नेबूकदनेस्सर ने उनकी सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा को पक्का करने के लिए उन्हें ऐसा भी किया कि किसी भी तरह से
दुश्मन लोग ना आ सके, और वैसे आने के संकट के समय पर हमें उस समय लड़ाई करनी यानी युद्ध करना रहेगा, तब उस समय वो खाना अनाज ऐसे सब कुछ नहीं सकते। तो उन्होंने पहले से ही उन्होंने क्या किया कि 20 साल के लिए उन लोगों के लिए अनाज, खाना, सब चीजों का प्रबंध करके और उन लोगों की सुरक्षा को उन्होंने पक्की की। அந்த சமயத்துல எதிரும் சேர வந்து இந்த பக்கத்தை பிடிக்கணும், ராஜாவை பிடிக்கணும், நாட்டு மக்களை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அவங்க வந்து அந்த சைக்கிள் தான் அவங்க 1 வருஷம் 2 வருஷம் 8 வருஷம் தண்ணி தங்கிருக்கலாம், அவங்களுக்கு தான் சாப்பாடு இல்லாம திரும்பி அவங்க நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு ராஜா 20 வருஷத்துக்கு அங்கே ऐसा था कि विरोधी जो राजा के सेना लोग आते थे कभी उनके ऊपर हमला करने के लिए, तो वो लोग क्या वो वार्ड ऐसा देते हैं कि कभी ये लोग बाहर निकले तो उनके ऊपर आक्रमण करके किसी भी तरह से वहां से उन लोगों को नष्ट पहुंचाए और कुछ लूट के चले जाए। इस तरह से वो लोग गिनती लगाकर 1-2 साल तक उनके किले के बाहर उनके राह दिखते थे कि ये लोग कब बाहर आएंगे तो हम लोग उसे खत्म कर देंगे या आक्रमण करके हम अंदर प्रवेश हो जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं हो सका, इसलिए कि नेबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया कि 20 साल तक उनके खाने पीने के लिए पूरे तरह से इंतजाम करके और परमेश्वर भी इसी तरह से हमारी सुरक्षा के लिए जो सरल बनाया वो बहुत ही बड़ा किला, उससे भी पराक्रमी किला है। और हमें प्यास के लिए या पानी के लिए तो सबसे आवश्यक है, तो पानी की भी इंतजाम इस तरह से करते हैं। और दूसरी एक बात है, தேவன் அதன் நடுவில் இருக்கிறார், அது அசையாது, அதிகாலமே தேவன் அதற்கு சகாயப்படுகிறது। और 5वां में यहाँ देखते हैं परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो करते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। यानी यहाँ पर देखते हैं 5वें वचन के अंदर उस नगर के बीच में है, उसे कभी टलने नहीं देते। अभी सबसे पहले हमने देखा किला, उसके बाद नदी, ये सूर्य, और यहाँ पे सूरज के एक समर्पित वक्त होती है, ஒரு பெரிய கோட்டை, ஒரு நதி, ஒரு சூரியன்। और परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए सबसे पहले वो एक किला है, उसके बाद हमारी सहायता, उसके बाद एक नदी का बहाव है, उसके बाद 5वें वचन में इस तरह से देखते हैं कि वो हमारे लिए सूरज है। और वचन संहिता में और भी कई वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारे सुरक्षा है, साथ साथ में मेरे लिए सूरज भी बने हुए हैं। और वो सबसे पहले कि हमारे लिए सरल स्थान है, और वो हमारे लिए नदी है, सूर्य, और हमारे लिए वो सूरज है। அது பக்கத்துல வாசிப்பதற்கு கஷ்டமா இருக்கும், ஆனா அந்த வாசிப்பு பார்க்கும்போது இதுல முடித்து முடித்து அந்த அழைச்சு பொடியடித்து அவங்க அனுப்புறாங்க। और आगे भी हम वचनों को आगे बढ़ते जाते हैं, अभी लिखा है 9वें वचन के, वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाई को बिताता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों का आग में झोंक देता है। और उनका परमेश्वर का और एक नाम आप लोग जानते होंगे कि क्योंकि वो सेनाओं के परमेश्वर है। वो सबसे पहले तो हमारे लिए किले हैं, और वो नदी है, सूर्य, और वो सूरज भी है, और वो सेनाओं के परमेश्वर। जैसा यदि सनातन सामर्थ्यवान परमेश्वर हो तो हमें किस बात का डर है, क्योंकि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम सचमुच इन वचनों के अनुसार उनका विश्वास करके परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो हमें डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई मतलब नहीं है।
கடைசி 2 வருஷத்துல வாசித்து எடுத்து போறோம். उस वजह से इधर के आखिरी क्वेश्चन ये पढ़ के पूरा करेंगे। ஆலோசனைகளா உங்களுக்கு எனக்கு கொடுக்கிற அளவுக்கு என்னன்னா நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவனை அறிந்து கொள்கிறேன். யாரைகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருக்கிறேன். உங்களுக்குள்ளே நான் பூமியில் வேண்டும். और परमेश्वर हमें आखिर में एक आखिरी को वचन पढ़ करके हम समझना चाहिए तो परमेश्वर पे हम पूरी तरह से विश्वास करके रहते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर ही काफी है। और यहाँ पर लिखा है कि 10वां और 11वां आया मैं पढ़ता हूँ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பெரிய கோட்டை. क्योंकि परमेश्वर हम शुरुआत से देखते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे लिए किया है அந்த நதி और वो परमेश्वर हमारे लिए अच्छी सी नदी है நீதியின் சூரியன். और सबसे पहले हमारे न्याय के सूरज है और वो सेनाओं के परमेश्वर है। அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்கிறேன். और चुप होकर के बैठकर के हम देखें कि परमेश्वर का पराक्रम किस प्रकार का है। அமர்ந்திருந்து அவர்களுக்கு be still. यानी यानी हम खामोश होकर के बैठे रहकर के उनकी चमत्कारों को इसलिए कि सेनाओं के परमेश्वर हमारे साथ थे और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और वो जो वचन है बहुत ही कीमती वचन है। முக்கியமானது 2 தடவை அவரும் முக்கியமானது 3 தடவை சொன்னா 3 பெரிய நூல் வந்து அதுக்கு போறாங்க. यानी परमेश्वर यदि एक बार कहते हैं वो बहुत ही मुख्यता है, दूसरी बार कहते हैं उसी बात को तो वो उससे भी मुख्यता है और तीसरी बार कहते हैं तो वो उससे भी अति मुख्यता है। इसलिए कि 3 धारों का जुड़ना उसका जो सामर्थ्य है वो ज्यादा हो जाता है। தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுபவமான துணையுமாக இருக்கும்போது 3 தடவை சொல்றது. क्योंकि परमेश्वर जो किले के समान यानी सरल है और आपत्ति के समय में वो हमारे लिए खूब ऐसा लिखा है। केवल एक जगह पर नहीं, यहाँ पर 3 जगह पर दर्शाया है। தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் पहले वचन के अंदर देखते हैं परमेश्वर हमारा संसार और डर है संकट से अतिशय से मिलने वाला सहारा है। 7வது பார்த்தீங்கன்னா சேனையின் கேப்டன் நம்மோடு யாக்கோபின் தேவனுக்கு ஓய்வாக. 7वें आयत में देखते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। கடைசி வசனத்துல சேனையின் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு ஓய்வாக. और इसका आखिरी और 11वां आयत को देखते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ஆரம்பத்துல தேவன் நமக்கு போட்ட மத்தியில தேவன் நமக்கு போட்ட शुरुआत में हमारे यानी देखते हैं कि पहले वचन में देखते हैं तो वो हमारे लिए गढ़ है और 7वें वचन में 20वें देखते हैं तो वहां भी परमेश्वर हमारे लिए गढ़ और आखिरी वचन में भी देखते हैं तीसरी बार कहते हैं वो हमारे लिए गढ़ है। क्योंकि परमेश्वर कल आज और कभी भी नहीं बदलने वाले ऐसे परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से हम भरोसा रख करके विश्वास करके ऊपर हम यदि निर्भर रख के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जरूर से ये जो बातों के जरिए हमें विश्वास दिया है वो हमारे जीवन के अंदर जरूर होगा।
Thank you. हमारे सामने बहुत बड़े जरा स्तुति करते और करते करके बंदे हमारे भक्ति और நாங்கள் துதிக்கிறோம், உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஆழமான சத்தியங்களை எங்களுக்கு ஒரு ஐயாவோடு அவரோடு எங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்து அதற்காக அதாவது ஓய்வு நாள் ஆரம்பமாகிவிட்டது. அது மிகவும் பரிசுத்தமானது.
கர்த்தருடைய பிரமாணங்களை நாங்கள் கடைபிடிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். जो संदेश अपने दास के लिए मिला है எந்த செய்தியை நாங்கள் இந்த நேரம் உங்களுடைய ஊழியக்காரர்களின் மூலம் நாங்கள் கேட்போமோ उसका हम अमल कर सकते हैं அதை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவும். और उनके साथ இந்த கூடியிருக்கின்ற தேவ பிள்ளைகளோடு ஒவ்வொருவரும் அதை நாங்கள் அனுசரித்துக் கொள்ள அதை கடைபிடிக்க எங்களுக்கு अगर कोई परिवार में समस्या ஏதாவது குடும்பத்திலே சில கஷ்டங்களோ அல்லது துயரங்களோ இருந்தால் पैसों की समस्या அதாவது பண ரீதியிலாக ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தால் அதாவது உறவுகளுக்கு நடுவிலே ஏதாவது பிளவு இருந்தால் जो स्त्री की समस्या அதே போல சுகாதாரத்திலே ஏதாவது குறை இருந்தால் में क्या मैं समझ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது குறை இருந்தால் कोई तरह से सब समस्या உன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை எரித்து முழுவதுமாக அதிலிருந்து விடுதலை காணும். रात में मैं अच्छा विश्राम இந்த இரவு வேளையிலே எங்களுக்கு நல்ல ஓய்வு தரவில்லை. सुबह में भक्ति करने बाकी से बने ஏழேற்றால் நாளை காலை மீண்டும் நாங்கள் ஒரு 6 மணிக்கு நாங்கள் பங்கு பெற சுகமளிக்கக்கூடிய இருக்கிறோம். फिर पाप का यीशु எங்களுடைய பாவங்களும் அநியாயங்களும் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்திலே எல்லாம் ஒப்புரவாகட்டும். आमेन ஆமென். இயேசுவின் ये मेरे पास प्रभु को विनती कर रहा हूं पास्टर